السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم قربانی کے ایام کے قریب ہیں، یعنی قربانی کے دن قریب ہیں، اور ہمیں قربانی جب واجب ہو جاتی ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کے مسائل کو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ پارٹ 2 میں قربانی کے مسائل پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے چند مسائل پیش کیا تھا، اس کے آگے کے مسائل کو پیش کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ قربانی کا وقت 3 دن ہوتا ہے: 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ۔ ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے 12ویں تاریخ کے غروب تک، اس سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا بہتر ہے، افضل ہے، اور ان تاریخوں میں دن ہو یا رات ہو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن دن کا وقت قربانی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ذبح کرتے وقت میں 4 نسیں کٹنا ضروری ہے۔ اگر رات میں قربانی کر رہے ہیں اور ذبح کرتے وقت میں 3 نس کٹ گئی، 1 نس باقی رہ گئی، تو وہ قربانی نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 رگوں میں سے 1 رگ بھی اگر کٹنا باقی رہ گئی تو وہ قربانی درست نہیں ہوئی، بلکہ وہ جانور مردار رہا، اور مردار جانور کا کھانا حرام ہے۔ آگے مسئلہ میں یوں فرمایا کہ اگر کوئی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کو سفر میں تھا، چونکہ سفر میں قربانی واجب نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مقام پر آیا، تو اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ اور یوں فرمایا کہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کو سفر میں ہی ہیں، لیکن نیت یہ کر لی تھی کہ میں 15 دن رہوں گا، تو اس نیت کی وجہ سے، 15 دن رہنے کی نیت کی وجہ سے، وہ سفر کا حکم ختم ہو گیا، اس لیے وہاں بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر آگے یوں فرمایا کہ 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کے درمیان اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی، لیکن 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے کہیں سے اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کرے۔ مانا کہ قربانی، اپنے جانور کی قربانی اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر ذبح کرنا نہ جانتے ہو تو کسی دوسرے کے ہاتھ سے ذبح کروا لے۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ پردے کی وجہ سے ذبح کے جگہ حاضر نہ رہے، یعنی ذبح کی جگہ نہ ٹھہر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پردے کا مسئلہ نہ ہو اور اپنے گھر کے ہی آدمی سے ذبح کر رہے ہو تو ذبح کرنے کی جگہ پر حاضر رہے، یعنی کھڑا رہے، تاکہ ہم سب جو ہے قربانی میں حاضر ہو جائیں۔ اگر قربانی کرتے وقت زبان سے قربانی کی نیت کر لینا یا تو ضروری نہیں ہے، دل میں صرف یہ ارادہ کیا کہ میں قربانی کرتا ہوں، اور زبان سے کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نیت یاد ہے تو نیت کا پڑھنا، دعا کا پڑھنا بہتر ہے، قربانی ہو جائے گی۔ دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ یا اونٹنی، ان سب جانوروں کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ نیل گائے
या हिरन जो वहशी जानवर कहलाते हैं, जंगली जानवर कहलाते हैं, उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त सिर्फ इन जानवरों की है जो मैं अभी बताया, बकरी, बकरा, भेड़, भेड़िया, दुम्बा, बैल, गाय, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, इन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। इन्हीं जानवरों में से कुर्बानी करें। और आगे यूँ फरमाया कि कुर्बानी में बड़े जानवर जैसे कि गाय, भैंस, ऊँट, बैल है, भैंसा है, इन जानवरों में 7 आदमी मिलकर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करे तो दुरुस्त है। लेकिन शर्त ये है कि जब कुर्बानी के बाद गोश्त हिस्से किए जाए तो 7 हिस्से बराबर हो। किसी का कम और किसी का ज़्यादा हो तो कुर्बानी दुरुस्त न होगी, सबकी कुर्बानी दुरुस्त न होगी। और यूँ भी फरमाया कि सबकी नीयत एक हो। वो नीयत क्या है? कुर्बानी की नीयत या अकीका की नीयत। अगर ये नीयत ना हो, सिर्फ गोश्त खाने की नीयत हो, तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जब भी हिस्सा कोई बड़े जानवर में लेता है तो जो उसमें ज़िम्मेदार होता है वो हिस्सा लेने वालों को इन बातों को समझाए कि नीयत कुर्बानी की या अकीका की करे और गोश्त खाने की नीयत ना करे, और जो ज़िम्मेदार है वो हिस्सों को बराबर करे। किसी का कम और किसी का ज़्यादा करेंगे तो कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। और आगे यूँ फरमाया कि गाय, भैंस, ऊँट, बड़े जानवर में जो 7 हिस्से 7 आदमी शरीक होते हैं, अगर 7 आदमी ना हो, 5 हो या 6 हो, तो भी जो है कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन शर्त क्या है? सबका हिस्सा बराबर हो। और यूँ फरमाया कि 8वां आदमी शरीक नहीं हो सकता। 8वां आदमी अगर शरीक हो जाए, 7 से ज़्यादा 8वां अगर आदमी शरीक हो जाए तो भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, बल्कि 7 से कम चलेंगे लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर 7 से कम हैं, 6 आदमी हैं या 5 आदमी हैं, तो कुर्बानी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हिस्से बराबर हो और 8वां आदमी शरीक न। और आगे यूँ फरमाया कि बड़ा जानवर यानी गाय, भैंस, बैल, भैंसा खरीदते वक्त इसकी नीयत ये थी कि अगर कोई शरीक मिल जाए यानी हिस्सा लेने वाला मिल जाए तो उसको भी मैं हिस्से में शामिल करूँगा। ये नीयत थी ख़रीदते वक्त में। और ख़रीदने के बाद कोई हिस्सा लेने वाला मिल गया तो उसको अपने गाय में हिस्से में शरीक कर सकता है, दुरुस्त है। लेकिन अगर ख़रीदते वक्त में ये नीयत थी कि मैं किसी को शरीक नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से कुर्बानी दूँगा, ऐसी नीयत किया था, लेकिन बाद में जो है कोई आदमी ऐसा मिल गया कि इसकी गाय में शरीक होना चाहता है, तो अब यहाँ जो है ये देखे कि शरीक होने वाला अमीर है या गरीब है। अमीर यानी जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, गरीब यानी जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। तो यहाँ ये हुक्म है कि जो अमीर है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है उसको तो ये हिस्सेदार बना सकता है, लेकिन गरीब है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं हो सकती थी, ऐसा आदमी शरीक होना चाहता है तो ऐसे आदमी को शरीक ना कर ले, क्योंकि ये शरीक हो जाएगा तो वो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ना मिला तो ख़ुद अपनी तरफ से पूरी गाय कुर्बानी करे। अगर मिल रहा है तो वाजिब जिसके ऊपर है उसको शरीक कर सकता है, यानी अमीर आदमी को। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं उसको शरीक नहीं कर सकता। और आगे यूँ फरमाया कि कुर्बानी का जानवर ख़रीद तो लिया था, लेकिन बाद में ख़रीदने के बाद में वो जानवर गुम हो गया, इसलिए उसने दूसरा जानवर ख़रीदा। तो अब यहाँ ये हुक्म है कि अगर अमीर आदमी का जानवर गुम हो गया हो और दूसरा जानवर ख़रीद लिया हो तो उसके बाद में वो पहला जानवर भी मिल गया, गुम हुआ
जानवर भी मिल गया, तो अब ये हुक्म है कि वो एक ही जानवर की कुर्बानी करे, एक ही जानवर की कुर्बानी वाजिब है। और अगर गरीब आदमी कुर्बानी का जानवर खरीद लिया था, गुम हो गया, इसलिए दूसरा जानवर खरीदा, लेकिन ख़रीदने के बाद वो पहला जानवर भी मिल गया, यानी 2 जानवर हो गए, तो अब गरीब के लिए ये हुक्म है कि वो दोनों जानवर कुर्बानी करे। दोनों जानवरों की कुर्बानी करना उसके ऊपर वाजिब है। और अमीर एक जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है। अमीर को एक जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है और गरीब को दोनों जानवर कुर्बानी करना वाजिब है। और आगे यूँ फरमाया कि गोश्त के हिस्से करते वक़्त में कम ज़्यादा हिस्से न करे, बल्कि खूब अच्छी तरह तोल कर हिस्से करे। अगर हिस्से करते वक़्त में कम ज़्यादा होगा तो सूद होगा, यानी ब्याज होगा और गुनाह होगा। और आगे यूँ फरमाया कि कल्ला, पाए, खाल वगैरह जिस हिस्से तरफ होंगे वहाँ गोश्त कम होगा तो चलेगा, लेकिन हिस्से तो बराबर किए थे, लेकिन कल्ला, पाए, खाल वगैरह उसमें शामिल किया किसी हिस्से में, तो वो हिस्से में ज़्यादती होने की वजह से वो भी सूद हो गया, गुनाह होगा। हाँ, जिस तरफ गोश्त कम है उसमें ये शामिल करे, कल्ला, पाए, खाल वगैरह, तो हिस्सा बराबर होगा, चाहे जितना गोश्त कम हो। इस बात का भी ख्याल रखें। और आगे यूँ फरमाया, बकरी, बकरा, भेड़ 1 साल से कम ना हो। अगर 1 साल से कम हो और उसकी कुर्बानी करे तो ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर मोटा ताज़ा फुरब्बा हो और अगर 6 महीने का भी हो और 6 महीने का बकरी, बकरा, भेड़ 1 साल के बराबर दिख रहा है, 1 साल के बराबर बकरी, भेड़, बकरा, इनमें अगर 6 महीने के बच्चे को जो मोटा ताज़ा है, फुरब्बा है, उसको छोड़ दे और 1 साल वाले जानवरों के बराबर दिख रहा है, तब भी इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। 6 माह के अंदर भी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन शर्त है कि वो साल के बराबर दिखता हो। और आगे फरमाया कि गाय, भैंस, बैल, भैंसा ये 2 साल के पूरे हो जाए। 2 साल से कम के होंगे तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं, इनको 2 साल पूरे होने के बाद कुर्बानी दुरुस्त है। और आगे यूँ फरमाया कि ऊँट या ऊँटनी 5 साल की पूरे हो चुके हो तब कुर्बानी दुरुस्त है, और अगर 5 साल से कम हो तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। 5 साल होने के बाद कुर्बानी दुरुस्त है। इसलिए इन तीनों जानवरों की, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, ये साल का पूरे साल के होने चाहिए, और गाय, भैंस, बैल ये 2 साल के पूरे होने चाहिए, और ऊँट, ऊँटनी ये 5 साल के पूरे होने चाहिए। कुर्बानी करते वक्त में इनकी उम्र का ख्याल करें। और आगे यूँ फरमाया कि कोई जानवर ऐसा है कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव ज़मीन पर टेकता ही नहीं, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। और अगर चौथा पाँव टेकता तो है, इससे सहारा लेता है, लेकिन लंगड़ा कर चलता है, तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है, क्योंकि वो चौथा पाँव ज़मीन पर टेक कर चलने में सहारा लेता है और लंगड़ता है, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। तो जानवर खरीदते वक्त में इन बात का भी ख्याल रखें कि लंगड़ाता है या नहीं है, ज़मीन पर पाँव टेकता है या नहीं है। अगर नहीं टेकता, वो पाँव का सहारा नहीं लेता, 3 पाँव से चलता है तो दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर चौथा पाँव ज़मीन पर टेकता है, उससे सहारा लेता है, लेकिन लंगड़ा कर चलता है, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और आगे यूँ फरमाया
कि कोई ऐसा जानवर जो एकदम दुबला पतला मरेल हो, इतना कमज़ोर है, जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, यानी हड्डियों में गुदा ना हो, ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर ताकत है, हड्डियों में मग़ज़ है और दुबला पतला है तो ये जानवर दुरुस्त है। लेकिन जिसकी हड्डियों में गुद ही ना हो, उसके अंदर ताकत ना हो, दुबला पतला है, गोश्त ही ना हो, तो ऐसा दुबला पतला जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। तो जानवर ख़रीदते वक्त में इन बातों का भी ख्याल रखें कि उसके हड्डियों में मग़ज़ हो, गुदा हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत गोश्त हो, तो ऐसा जानवर दुरुस्त है। तो ये थे कुर्बानी के चंद मसाइल जिनका जानना हर मुसलमान को ज़रूरी है, ताकि हमारी कुर्बानी करते वक्त में दुरुस्त हो जाए। इसलिए ये तमाम बातें हर मुसलमान का जानना ज़रूरी है, पूरी उम्मत के मुसलमानों को जानना ज़रूरी है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जानना ज़रूरी है। इसलिए इन बातों को अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में, देश में हो या परदेश में, इन तमाम बातों को शेयर करें, ताकि जो है इसका सवाब हम सबको मिल जाए। और ये बातें ऐसी हैं कि अपने तक सीमित रखनी नहीं चाहिए। अगर ये बातें हमको मालूम हैं और अगर अपने तक सीमित रखेंगे, यानी अपने तक ही रखेंगे, तो फिर हमको गुनाह हो जाएगा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इस बात की भी पकड़ कर सकते हैं कि जो बात, दीन की बात जो दूसरों तक पहुंचानी थी, तो अपने तक ही क्यों रखा, दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाया। इस बात के अंदर भी हम पकड़े जा सकते हैं। इसलिए खूब सारी उम्मत में, सारी दुनिया में इन बातों को शेयर करें, ताकि सबको जो है इन बातों की मालूमात हो जाए और सबकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाए। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो दीन की बातों का बनाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और इन बातों को लायक भी करें। अल्लाह ताला हम सब को जो है ऐसे जज्बात हमारे दिलों के अंदर पैदा करे कि हम दीन की बातों को जो है दूसरों को पहुंचाने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।